Welcome, dear students. Greetings of the day. Today is your third lecture and first video lecture in nursery techniques. So, in this lecture, you will learn how can raise a nursery for the better establishment of a orchard and better establishment of a plant. So, in this topic, you will study about the whole process of nursery establishment. Course instructor myself Ankur Sharma, Assistant Professor Horticulture. The title HTH and code HOT 221. This is the same lecture in first semester, Fundamental of Horticulture, and this is the same topic in high-tech horticulture. So in both classes, one video will be circulated. So mainly we will discuss about high-tech horticulture. So these are the outlines. First outline is establishment of nursery. Establishment of nursery क्या हो, कैसे हम नर्सरी को स्टेबल करते हैं. Another is selection of site. किस तरीके से उसकी लोकेशन होनी चाहिए, कैसा साइट होना चाहिए, किस तरीके का एरिया होना चाहिए, वहाँ का पीएच कैसा होना चाहिए, सॉइल का क्या नेचर होना चाहिए, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती हैं ये चीज़ें. प्रोडक्ट चॉइस, किस तरीके से अगर हम नर्सरी को डेवलप कर रहे हैं, नर्सरी को स्टेबल कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट किस टाइप का होना चाहिए. These all are the things depend on establishment of a nursery. Product choice. In which type you want to grow the nursery, either in horticulture, either in vegetable science or in fruit science, because there are the separate methods in both. Whenever you have to grow the nursery of vegetable or you have to grow the nursery of fruit, because vegetable crops needs I think 3 to 4 months to complete their life cycle, but fruit crops may take 10 to 15 years to complete the life cycle. So both processes are there in the case of vegetable or in the case of fruit science. So in brief, what product you have to choose, depending on those factors, you have to select the method of grow of nursery. Management of nursery, in management all things comes under, that means aftercare, proper fertilizer management, manures and fertilizers, है ना, proper irrigation facilities, weed control, insect control, disease management, these all the factors comes under management of nursery. So nursery techniques, these PPT I think divided into 20 to 25 slides. So there is no possible to complete this PPT in one lecture. So these PPT may further divided into 3 video lectures, 20 minutes video lectures. So first of all, now we start our lecture through PPT. Now the first topic is establishment of nursery. Nursery techniques. नर्सरी टेक्निक्स, फर्स्ट है हमारा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नर्सरी, अनदर वन इज मैनेजमेंट ऑफ नर्सरी, थर्ड इज कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्नामेंटल नर्सरी, एंड द फोर्थ इज प्रो ट्रेड टेक्निक्स. By the using of this technique we can grow the nursery. So this is the type of a nursery, this is the method of a nursery growing. तो 4 तरीके के मेथड्स हैं, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नर्सरी, मैनेजमेंट ऑफ नर्सरी, कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्नामेंटल नर्सरी एंड प्रो ट्रेड टेक्निक्स. These has been an increasing demand for horticultural crops, more particularly fruit and ornamental ones, in both urban and rural areas of India. There has been increasing demand. इस समय बहुत डिमांड बढ़ रही है हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में. ज़्यादातर अगर हम बात करें तो फ्रूट्स एंड ऑर्नामेंटल, जो भी डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं, चाहे वो फ्लावर्स हों, चाहे वो एनुअल्स हों, चाहे वो बाइनियल्स हों, चाहे वो पेरेनियल्स हों, किसी भी तरीके के ऑर्नामेंटल और जो डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं जो हमको दिखाई देते हैं, उन सब का प्रोपोगेशन हम नर्सरी के थ्रू ही करते हैं.
तो नर्सरी हमारा फर्स्ट स्टेप है किसी भी प्लांट को ग्रो करने का। तो हम कह सकते हैं कि इस समय हॉर्टिकल्चर फील्ड में नर्सरी ग्रोइंग एक बहुत बर्निंग एस्पेक्ट बन रहा है, मेनली आपके फ्रूट्स में और ऑर्नामेंटल क्रॉप्स में। और अगर हम बात करें तो इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज ऑफ इंडिया, ग्रामीण जो रूरल एरियाज होते हैं और अर्बन एरिया, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, इन दोनों क्षेत्रों में आजकल हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में मेनली वेजिटेबल्स और ऑर्नामेंटल प्लांट्स को ग्रो करने के लिए नर्सरी को ही इनिशियल स्टेज में ग्रो करके उनको मेन प्लांट में ट्रांसप्लांट किया जाता है। विद दिस, इसके साथ साथ द डिमांड फॉर गुड क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल हैज़ गॉन अप and hence the nursery business has developed rapidly in recent years in our country. इसके साथ साथ द डिमांड फॉर गुड क्वालिटी, अच्छे क्वालिटी के प्लांटिंग मटेरियल्स हैज़ गॉन अप, मिल जाते हैं, एंड हेंस द नर्सरी बिजनेस एट डेवलप्स। इससे हमारा जो नर्सरी का बिजनेस और नर्सरी का जो व्यवसाय होता है वो बहुत अच्छी तरीके से डेवलप होकर हमारे देश के कई भागों में सालों सालों तक चलता रहता है। नर्सरी प्रोडक्ट इज़ नो लॉन्गर रिस्ट्रिक्टेड टू ऑर्चर्ड्स और लार्ज पार्क्स एंड गार्डन्स। जो नर्सरी का प्रोडक्ट है वो जैसे कोई भी प्लांट इनिशियल स्टेज में है जिसकी उम्र 10 से 15 दिन की है, 20 दिन की है, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम ज़्यादा समय तक ऑर्चर्ड या पार्क्स या गार्डन्स में नहीं रोक सकते, क्योंकि उसको हमको मेन फील्ड में, मेन प्लांट में ट्रांसप्लांट करना ही होता है। इस चीज़ को हमको ध्यान रखना होगा कि कुछ वेजिटेबल्स के या कुछ फ्रूट्स की, स्पेशली मैं वेजिटेबल और ऑर्नामेंटल प्लांट्स की नर्सरीज़ की यदि बात करूं, तो वेजिटेबल की अगर हम नर्सरी लगाते हैं, इन केस ऑफ अगर हम एक एग्जांपल लें तो कॉलीफ्लावर की, कैबेज की, ब्रूसल्स स्प्राउट की, किसी भी अगर हम क्रॉप की नर्सरी वेजिटेबल में लगाते हैं तो हार्डली हम 1 मंथ में नर्सरी से उन प्लांट्स को मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। अदरवाइज अगर हम इसके बाद ब्लो कर रहे हैं इस पीरियड को, तो डेफिनेटली हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अफेक्ट करेगा, और जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अफेक्ट करेगा देन डेफिनेटली यील्ड विल आल्सो बी रिड्यूस्ड। So you have to keep this point seriously whenever you have to grow your nursery in the field. After the sowing of 30 days, day after sowing, you have to transplant these plant in a main field. ओके तो इसलिए इसमें लिखा है कि नो लॉन्गर रिस्ट्रिक्टेड टू ऑर्चर्ड और लार्ज पार्क्स एंड गार्डन्स। नाउ द सेकेंड स्लाइड इज, इट हैज़ बीन एंटर्ड इनटू हाई राइज बिल्डिंग्स, ऑफिसेस, फैक्ट्रीज, बिजनेस हाउसेस, हॉस्पिटल्स, hotels, backyards, roadsides in cities, rooftops, etc. हम अगर नर्सरी डेवलपमेंट और नर्सरी ग्रोइंग की बात करें तो ये आजकल बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो देखने को मिलती हैं, बहुमंजिला इमारतें, उन पे भी उनके ऊपर टॉप पे उनके बैकयार्ड्स में जो लोन हमारा टेरेस पे होता, जो हमारे टेरेस की जो जगहें होती हैं, जो ब्लैंक जगहें होती हैं, हम उन पे भी नर्सरी को ग्रो कर लेते हैं। ऑफिस के आसपास जो बैकयार्ड्स होते हैं वहाँ भी हम कर लेते हैं। फैक्ट्रीज़ में भी ये चीज़ प्रचलन में है, बिजनेस हाउसेस में भी ये चीज़ प्रचलन में है, हम हॉस्पिटल्स में भी नर्सरीज़ को कर लेते हैं, होटल्स में भी कर लेते हैं, क्योंकि बैकयार्ड्स में बहुत सारे लोन्स और टेरेस वगैरह पे खाली जगहें पड़ी रहती हैं, वहाँ कर लेते हैं। रोड साइड्स इन सिटीज़, जो रोड्स हैं हमारी सिटीज़ के, उनके आसपास आपने देखा होगा एवेन्यू प्लांट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, डेकोरेटिव प्लांट्स लगाए जाते हैं एक तरीके से शेड पर्पस के लिए और डेकोरेटिव पर्पस के लिए, उनकी भी हम नर्सरी वहाँ पर कर लेते हैं। रूफ टॉप्स, छत पे जो कुछ जगहें होती हैं वहाँ पर, तो ये जो नर्सरी का एक तरीके से बिजनेस है वो इन सब चीज़ों में एक तरीके से इंडल्ज हो गया है। हैवी डिमांड इज ऑब्जर्विंग ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन्स। उन फेस्टिव सीजन्स में जब फेस्टिव सीजन आता है तो आपको पता है कि फ्लावर्स की डिमांड बहुत रैपिडली बढ़ती है, क्योंकि फ्लावर्स डेकोरेटिव पॉइंट से बहुत अच्छे होते हैं, और अगर हम उनको वहाँ पर किसी भी फेस्टिवल्स में जब तक हम फ्लावर्स को इस्तेमाल ना करें तब तक खुद में ये लगता है कि हाँ, हमने कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया या डेकोरेशन में मज़ा नहीं आया। इसलिए heavy demand is observed
ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन्स एंड सीजन्स ऑफ फेयर्स एंड मेलाज, जब मेला और फेयर्स जो लोकल मेला वगैरह नहीं होते उनमें भी आपने देखा होगा नर्सरी प्लांट्स वगैरह मिल जाते हैं, डेकोरेटिव प्लांट्स वगैरह। ऑर्नामेंटल नर्सरी बिजनेस हैज़ देयरफॉर कम अप इन अ लार्ज, तो जो ऑर्नामेंटल नर्सरी बिजनेस है, जो अलंकृत बागवानी और जो बात की जाए डेकोरेटिव पर्पसेस में जो प्लांट्स आपके इस्तेमाल किए जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आजकल हमको देखने को मिल रहे हैं और उनका स्कोप भी बहुत दिखाई दे रहा है। नर्सरी को इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए किस तरीके से हम अपने सॉइल की प्रिपरेशन करें, तो इस डायग्राम के माध्यम से आप उन चीज़ों को समझ सकते हैं। बाय सीइंग दिस डायग्राम यू कैन अंडरस्टैंड हाउ कैन यू ग्रो योर नर्सरी एंड हाउ कैन यू मैनेज योर सॉइल। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे हो सॉइल सरफेस से 1.8 मीटर डेप्थ में, और उसके ऊपर आप देख रहे हो कुछ प्लांट्स ग्रो हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे होने चाहिए? इंक्रीज्ड कैपेसिटी फॉर इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब होता है कि जो वाटर है हमारा, जो मूवमेंट करता है सरफेस पे, उसका कितने % एब्जॉर्प्शन होता है। रैपिड इंटरनल ड्रेनेज, जो हमारा ड्रेनेज है वो रैपिड होना चाहिए, क्योंकि ड्रेनेज अगर अच्छा नहीं होगा तो वाटर का स्टैग्नेशन होगा, और वाटर का स्टैग्नेशन होगा तो ऐसी कंडीशंस में नर्सरी प्लांट जो होते हैं वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाते। तो ये चीज़ भी आपको इंश्योर करनी होगी कि रैपिड इंटरनल ड्रेनेज, जो ड्रेनेज है हमारा, वो बहुत सही होना चाहिए। सरफेस वाटर रिमूवल, साथ साथ जो सरफेस पे एक्सेस वाटर होता है, जो प्लांट एब्जॉर्ब, जो सॉइल एब्जॉर्ब करने के बाद बचा रहता है, उसका भी एक तरीके से रिमूवल होना चाहिए। मेंटेन ऑप्टिमम सॉइल कंडीशंस, जो सॉइल कंडीशंस हैं वो हमको ऑप्टिमम सॉइल कंडीशंस, कम से कम मात्रा में किसी भी तरीके से जो उनकी टोपोग्राफी है वो अंडुलेटेड ना हो, ऊबड़ खाबड़ ना हो, उसका पीएच जो है एसिडिक ही होना चाहिए, ठीक है। टिलेज प्रैक्टिसेस भी उस पर ठीक ठाक होनी चाहिए, और उसकी जो सॉइल है वो फ्राइबल होनी चाहिए, उसमें कुछ डेले कंकड़ नहीं होने चाहिए। तो ये सब चीज़ें सिक्योर करती हैं इन सब चीज़ों को। तो ये एक डायग्राम है, इसके माध्यम से आप समझ सकते हो कि किस तरीके की सरफेस हमको प्रोवाइड करनी होती है जब हम नर्सरी को ग्रो करते हैं तब। डायग्राम आप देख सकते हैं, ऊपर प्लांट ग्रो हैं, नीचे की सरफेस के बारे में आपको बताया गया है कि कितने कितने मीटर में क्या क्या चीज़ें किस तरीके की होनी चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नर्सरी, नर्सरी इज़ डेवलप्ड ग्रेजुअली। नर्सरी जो हमारा है, पौधशाला जो है, वो धीरे धीरे एक तरीके से डेवलप होता है। द मदर प्लांट्स planted for vegetative and seed propagation and seed propagated plants such as seasonal flower seedlings are raised for sale simultaneously. Nursery is developed gradually, जो हमारा पौधशाला है वो धीरे धीरे डेवलप्ड होती है। द मदर प्लांट्स, जो मेन प्लांट होता है, मदर प्लांट्स प्लांटेड फॉर वेजिटेटिव एंड सीड प्रोपोगेशन, तो उसको हम या तो सीड के द्वारा करेंगे या हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा करेंगे। एंड सीड प्रोपोगेटेड प्लांट्स सच एज सीजनल फ्लावर सीडलिंग्स आर रेज्ड फॉर सेल साइमल्टेनियसली। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कंसीडर्ड फॉर एस्टेब्लिशिंग अ नर्सरी आर, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं किसी भी नर्सरी को डेवलप करने के लिए, किसी भी नर्सरी को उगाने के लिए, वो हैं आपके एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस, सॉइल टाइप्स, सॉइल पीएच, लोकेशन, एरिया, इरिगेशन फैसिलिटीज, communication, market demand, availability of germplasm or mother plants, skilled persons, etc.
इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स क्यों हैं इस चीज़ को लिए हमें ये जानना है। सॉइल की टाइप्स कैसी है, किस तरीके की सॉइल की टाइप है, क्या ये नर्सरी के लिए अनुकूल है कि नहीं। एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस में लाइट टेम्परेचर, रेनफॉल, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एल्टीट्यूड एंड सी लेवल, इन सब चीज़ों पे डिपेंड होते हैं। सॉइल पीएच सॉइल पे डिपेंड करता है। लोकेशन कैसा है, जहाँ आप उसको ग्रो कर रहे हैं, क्या आप वो पोर्शन कोई सेडेड तो नहीं है, वहाँ प्रॉपर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ है कि नहीं, इरिगेशन की फैसिलिटीज़ है कि नहीं, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं कि नहीं। एरिया, इरिगेशन फैसिलिटीज़, कम्युनिकेशन, मार्केट की डिमांड है कि नहीं। नहीं तो हम नर्सरी ग्रो कर लें और मार्केट में उसकी डिमांड नहीं है तो फिर हम लॉस में चले जाएंगे और हमको कहीं ना कहीं मॉनेटरी लॉस होगा। अवेलेबिलिटी ऑफ जर्मप्लाज्म और मदर प्लांट्स, अगर हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी कर रहे हैं तो क्या हमारे पास मदर प्लांट्स की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। स्किल्ड पर्सन, जो ऐसे लोग जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स में अपने आप को काम कर पाते हैं, ऐसे स्किल्ड पर्सन हमारे पास हैं कि नहीं है। नेक्स्ट है हमारा कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नर्सरी में कौन कौन से फैक्टर्स आपके आते हैं। ये आप देख रहे हो सॉइल सरफेस है। इस सॉइल सरफेस में परमिएबल फॉर ड्रेनेज के लिए पीच्ड वाटर टेबल बनाई गई है और मैक्रो स्पोर्स फॉर एरेशन। इस तरीके की आप सपोज कर सकते हो कि आप अपने खेत में हो, आपको पैडी की नर्सरी बनानी है, आपको कलीफ्लावर की नर्सरी बनानी है या आपको कैबेज की नर्सरी बनानी है, तो सबसे पहले आप ये इंश्योर करोगे कि जो हमारा एरिया है, क्या वो एरिया किसी भी तरीके से किसी भी ट्री के द्वारा सेडेड तो नहीं है, वहाँ किसी और प्रोसेस से, मतलब ऐसा होता है कि जहाँ हम नर्सरी बना रहे हैं तो क्या उसके आसपास कोई पेड़ हो, तो पेड़ की छाया से वहाँ पर प्रॉपर सनलाइट नहीं आएगी, इसके कारण हमारा जर्मिनेशन नहीं होगा। क्या वो एरिया डायरेक्ट सनलाइट पे है कि नहीं है, उस एरिया में ड्रेनेज की फैसिलिटी सही है कि नहीं है, रन ऑफ की फैसिलिटी सही है कि नहीं, इरिगेशन प्रॉपर वे में हमको मिलता है कि नहीं मिलता है, टोपोग्राफी जो सॉइल की है वो ऊबड़ खाबड़ तो नहीं है, वो अंडुलेटेड तो नहीं है, वो प्लेन है कि नहीं है। इसके साथ साथ जहाँ हम नर्सरी बना रहे हैं उसके आसपास एक बॉर्डर बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, क्योंकि जो हम न्यूट्रिएंट्स उसमें डालेंगे, जब हम उसमें पानी लगाएंगे तो वो बहकर स्लोपी एरियाज़ में कहीं दूसरी जगह पर चले जाएंगे। तो क्या ये प्रबंध हमने किए हैं, ये मैनेजमेंट हमने किए हैं। तो इसी तरीके से एक चीज़ें दिखाई गई हैं कि जब हम नर्सरी के लिए कोई एक एरिया बनाते हैं तो उस एरिया में ये सब चीज़ें, रन ऑफ, ड्रेनेज, मैक्रोस्पोर्स और एरेशन, एरेशन का मतलब अगर हवा नहीं उसमें जाएगी मैक्रोस्पोर्स के लिए तो फिर जर्मिनेशन कैसे होगा, उसकी रूट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होगा, रूट स्टेबल कैसे रह पाएगी। इसलिए एक ओवरव्यू के लिए इस डायग्राम को आपके सामने रखा गया है जिससे नॉर्मली आप चीज़ों को समझ सकते हो। सिलेक्शन ऑफ साइट, इस सिलेक्शन ऑफ साइट के बाद में हमारी पहली पीपीटी, जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये पीपीटी 20 से 25 पेजेस की है, इसमें 20-20 मिनट्स के 3 वीडियो आपके बनेंगे। तो पहला वीडियो सिलेक्शन ऑफ साइट के बाद खत्म हो जाएगा, दूसरा वीडियो आपको इसके बाद में मिलेगा। सिलेक्शन ऑफ साइट, द साइट सेलेक्टेड फॉर रेजिंग ए नर्सरी should preferably be located near marketing centers for the convenience of transportation of the products with minimum or no damage. The site selected for raising a nursery, जो साइट हमने सेलेक्टेड की है नर्सरी को ग्रो करने के लिए, वो मार्केटिंग सेंटर्स के पास में होनी चाहिए। फॉर द कन्वीनियंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जिससे यातायात किसी भी तरीके से बाधित न हो। ऑफ द प्रोडक्ट विद मिनिमम और नो डैमेज, इसके साथ साथ जो हमारा प्रोडक्ट भी है उसका डैमेज भी बहुत मिनिमम हो या बिल्कुल भी ना हो। क्योंकि मान लो हम मदर प्लांट्स या जर्मप्लाज्म को मेन फील्ड तक ला रहे हैं, तो किसी प्लांट को आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं तो प्रॉपर केयर आपको मेंटेन करनी पड़ती है। सेकेंड थिंग, आपने जहाँ नर्सरी लगाई है किसी प्लांट की, क्या मेन फील्ड से उस नर्सरी तक कोई रोड है कि नहीं, जिससे प्रॉपर वे में हम ट्रांसपोर्टेशन कर सकें। हमारे नर्सरी पॉइंट से हमने नर्सरी प्लांट्स को किसी भी
ट्रैक्टर या ट्रॉली में रख के अगर हम उसको मार्केट में पहुंचा रहे हैं तो क्या ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं? हमको किसी भी तरीके से कोई इरिगेशन सोर्स चाहिए, हमें मैन्योर्स डालना है, फर्टिलाइजर्स डालना है, मान लो किसी डिजीज़ का इन्फेस्टेशन हो गया, किसी इंसेक्ट का इन्फेस्टेशन हो गया, तो हमें उसमें इंस्टेंट स्प्रे भी करना है। तो दीज ऑल फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल और नॉट। इसलिए इसमें लिखा है कि नियर मार्केटिंग सेंटर्स फॉर द कन्वीनियंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स विद मिनिमम और नो डैमेज। With minimum or no damage, these things should be kept in your mind whenever you have to select the point of nursery where nursery plant is growing. The site should be convenient enough for transportations for input materials also. It is important to have or develop a perennial source of water inside the nursery. If need arises, wind breaks of tile plants like eucalyptus, amla, seedling mango may be planted to provide necessary shade and protection. इन प्लांट्स को हम नर्सरी के आसपास इसलिए लगा देते हैं ग्रो करने के बाद, ग्रो करने से पहले नहीं, ग्रो करने के बाद इसलिए लगा देते हैं कि जिससे जो बाहरी हवाएं आती हैं, गर्म हवाएं जो आती हैं, जो प्लांट के लिए, नर्सरी प्लांट आपको पता है कि बहुत कम उम्र के होते हैं, उनके अंदर उतनी रेजिस्टेंस नहीं होती इन हॉट विंड्स को बर्दाश्त करने की। तो हम विंड ब्रेक्स इसलिए लगा देते हैं कि जो हार्मफुल विंड्स हैं वो इंटर न कर पाए हमारे प्लांट्स में। तो इन सब चीज़ों को सिक्योर कर लिया जाता है। तो साइट एंड सिलेक्शन तक आप चीज़ों को जान गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नर्सरी टेक्निक्स वॉल्यूम 2 करके आपको वीडियो मिलेगा। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, फिर आगे के वेबिनार में चीज़ों को समझाया जाएगा। नमस्कार।